Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education, and I am working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Mentally Challenged Children, and this course is from Masters of Special Education with an area of specialization mentally challenged, and this course is 3 credit hours, and the code of this course is SPED 4139. The title for today's lesson is Inductive Teaching Method. As you people have already discussed inductive approach and types of reasoning like inductive reasoning and deductive reasoning in different courses, and this lecture will be a review of all those concepts. And inductive approach is advocated by Pestalozzi and Francis Bacon, and this approach is based on the process of induction. Here is an example of process of process of inductive method, or we can say that inductive reasoning. A child eats green apple every time and feels its sour taste. ठीक है, जब भी उसको ग्रीन एप्पल दिया जाता है वो उसको सोर इन टेस्ट लगता है. So when the child concludes that all the green apples are sour in taste. ठीक है. Here is another example. आपके सामने जो है वो 3 ट्रायंगल्स दी गई हैं और उसकी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स शो किए गए हैं. सो वेन एवर अ चाइल्ड ड्रॉज अ ट्रायंगल ही मेजर्स इट्स एंगल्स. ठीक है, एंड देन फाइनली ही कंक्लूड्स दैट अ चाइल्ड मेजर्स ईच एंड एवरी ट्रायंगल and concludes that sum of angles in every triangle is equal to 180 degree. So ये उसका एक कंक्लूजन हो जाएगा कि जब भी एक जो ट्रायंगल है उसको मेजर किया जाता है तो उसका सम ऑफ दैट एंगल्स ऑल 3 एंगल्स आर 180 डिग्री. ठीक है, although these all triangles may be different in the shapes and in sizes, लेकिन जब भी उनका ट्रायंगल के तीनों को जो एंगल्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है तो वो 180 डिग्री होता है. So this is inductive reasoning, and when we use this inductive reasoning in teaching method, this is called as inductive teaching. In this we first take a few examples and greater than generalize. ठीक है, यानी कुछ examples के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है और जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसका कंक्लूजन बच्चों को क्लैरिफाई किया जाता है और उसको फिर जनरलाइज कर दिया जाता है. इट इज़ अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फार्मूला विद द हेल्प ऑफ अ सफिशेंट नंबर ऑफ कंक्रीट एग्जांपल्स. ठीक है, जितनी भी कंक्रीट एग्जांपल्स बच्चों को करवाई जाती हैं और उसके बाद एक फार्मूला जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है. इंडक्शन मीन्स टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सल ट्रुथ बाय शोइंग दैट इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर केस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल सच केसेस. ठीक है, यानी अगर डिफरेंट एग्जांपल्स दी जाती हैं और उसके बाद एक जो उसका कंक्लूजन होता है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की फॉर्म में आ जाता है कि अगर वो बार बार ट्रू आ रहा है तो दैट मीन्स कि उस तरह के सारे केसेस के लिए ट्रू होगा. इंडक्टिव अप्रोच इज़ साइकोलॉजिकल इन नेचर. When we are using this inductive approach in our teaching method, the children follow the subject matter with great interest and understanding, because वो inductive reasoning के accordingly learn कर रहे होते हैं. तो जब different examples के through वो अपने laws और theories को formulate करते हैं, formulas को formulate करते हैं, तो उस वजह से उनकी interest और understanding increase होती है. This method is more useful in arithmetic teaching and learning. If you remember what is arithmetic teaching, that is the maths portion we have in our textbooks like addition, subtraction, divisions. These actions are called as arithmetic teaching and learning. तो arithmetic teaching में inductive reasoning जो है वो काफ़ी अच्छा इसका result होता है. इसका यूज़ जो है वो उसमें उससे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंक्रीज़ होती है.
Inductive approach proceeds from particular cases to general rules of formula. यानी एक स्पेसिफिक केस अगर लिया जाता है और उसकी बार बार एग्जांपल्स प्रोवाइड की जाती हैं और फाइनली उसमें से फार्मूला जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है और एक जनरल रूल की तरफ लेकर जाते हैं. सो फ्रॉम पर्टिकुलर केस टू जनरल रूल ऑफ फार्मूला मूव करता है इंडक्टिव अप्रोच. नेक्स्ट ये है कि कंक्रीट इंस्टेंस और टू एब्स्ट्रैक्ट रूल्स. सो कंक्रीट जो एग्जांपल्स होती हैं या जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस बच्चे करते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स लेने के बाद जो फाइनली एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की तरफ जाते हैं तो कंक्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट रूल्स तक की जो फार्मूलाज हैं उनको उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है इंडक्टिव अप्रोच को. और इसके अलावा इंडक्टिव अप्रोच मूव्स फ्रॉम नोन टू अननोन. ठीक है, तो जो भी नोन एग्जांपल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं उससे अननोन की तरफ लेकर जाता है. क्योंकि फार्मूलाज की तरफ लेकर जाता है तो हम उसको कहेंगे कि अननोन की तरफ लेकर जाता है. एंड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करता है. ये इनिशियली जो एग्जांपल्स बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं वो सिंपल होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी कम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज़ किया जाता है. सो इंडक्टिव अप्रोच जो है वो उसमें ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं. दैट इट मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस टू जनरल रूल्स ऑफ फार्मूला. It has concrete instances to abstract rules, and it moves from known to unknown, and finally it moves from simple to complex. Now we will discuss some steps of inductive method. When we have to use inductive method in our teaching classrooms, then we will first of all we have to present examples. So first step is presentation of examples. और इसमें साथ साथ हम टीचर के रोल को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे हर स्टेप में कि टीचर का रोल क्या होता है. सो इन फर्स्ट स्टेप व्हेन द टीचर हैज़ टू प्रेजेंट द एग्जांपल्स, टीचर प्रेजेंट्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ सेम टाइप एंड सॉल्यूशंस ऑफ दोज specific examples are obtained with the help of the student. So the problems, or you can say that examples are posed by the teacher in front of the class. Examples generate टीचर करता है वो, और वो एक ही तरह की एग्जांपल्स डिफरेंट उसमें कॉन्टेक्स्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स बच्चों को प्रोवाइड करता है और हर एग्जांपल का जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स. सो टीचर जो है वो उसमें साथ साथ अपना रोल प्ले कर रहा होता है कि उसने उस एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी है, उसमें जो प्रॉब्लम प्रेजेंट किया गया है उसके सोल्यूशन के लिए वर्कआउट करवाना है बच्चों से, और डिफरेंट तरह से बच्चे जो हैं वो फिर उस जो एग्ज़ाम्पल उनके सामने पेश की गई है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. और जब वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो सोलली या इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते बल्कि वो विद द हेल्प ऑफ टीचर काम कर रहे होते हैं, विद द हेल्प बल्कि विद द गाइडेंस ऑफ द टीचर. ठीक है, टीचर साथ साथ गाइड कर रहा होता है कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व होगी और इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, अब आप ये वाला स्टेप फॉलो करें, अब आप ये वाला, लेकिन बच्चे कर खुद से रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द टीचर. Second phase of this inductive method is observation. After getting the solution, the students observe these and try to reach to some conclusions. So in this step of the method, the students are trying to conclude. ठीक है, वो उसमें से conclusions draw करने की कोशिश कर रहे होते हैं at their own, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया होता है. तो उसमें जो मेजर क्रक्स है, जो उसका एक फ़ाइनल कोई उसमें से रूल फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है या कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो जो भी कॉमन एक फार्मूला उसके अंदर इस अप्लाई हो रहा होता है सारी लेक्चर्स के अंदर या एक सारे एग्जांपल्स के अंदर, उनको फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स खुद से. सो इन दो जो स्टेप्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उस पर यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट एग्जांपल्स आर प्रेजेंटेड बाय द टीचर्स and the solutions are find out with the help of the teachers by the students, and then in the next step the students are trying to find out the conclusions from all those given examples. Then comes the third step, and this is called as generalization. After observation, the examples presented, the teacher and children decide some common formula.
प्रिंसिपल और लॉ बाय लॉजिकल म्यूचुअल डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसमें जब स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं जब वो कर लेते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स को, और उसके बाद उन एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद वो अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर स्टूडेंट्स कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जनरलाइजेशन की जो स्टेज होती है उसमें बच्चों की तरफ से जो कंक्लूजन आता है उसको टीचर के साथ डिस्कस किया जाता है, और एक प्रॉपर लॉजिकल डिस्कशन के बाद टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर उसमें जो अंडरलाइंग फार्मूला होता है या प्रिंसिपल और लॉ वट एवर जो एक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है उसको जनरलाइज करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। और देन फोर्थ जो इसका लास्ट स्टेप है दैट इज़ टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। आफ्टर डिसाइडिंग सम कॉमन फार्मूला, प्रिंसिपल और लॉ, children test and verify the law with the help of other examples. In this way, children logically attain the knowledge of inductive method by following above given steps. So अब यहाँ पर इस स्टेज जो लास्ट होती है उसमें जब एक फार्मूला हमारे पास फाइनल होकर टीचर की डिस्कशन के बाद आ जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको दोबारा से वेरीफाई करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए दोबारा से न्यू एग्जांपल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं। बल्कि यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि बच्चे खुद उन एग्जांपल्स को जनरेट करते हैं जिसमें जो अब न्यू फार्मूला जो उन्होंने कंक्लूड किया है उसको अप्लाई वो कर सकें, और फिर एक नई एग्जांपल्स के सेट के साथ वो दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि जो फार्मूला अब हम कर रहे हैं, इसको हमने जनरलाइज किया है, उसको दोबारा से टेस्ट और वेरीफाई किया जाए ताकि कंफर्म हो जाए कि जो फार्मूला कंक्लूड किया गया है वो डिफरेंट और बहुत सी सिचुएशंस में दोबारा उन एग्जांपल्स पर अप्लाई हो रहा है सक्सेसफुली और उसके सेम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और वो वर्कआउट कर रहा है। तो इस तरह से जो भी नॉलेज बच्चे गेन कर रहे होते हैं वो चूँकि एक लॉजिकल नॉलेज होता है, क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस हैं जो बच्चे प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले उनको एक एग्जांपल्स पेश की जाती हैं, पुट की जाती हैं उनके सामने, उनको सॉल्व करवाया जाता है, सॉल्यूशंस जब फाइंड आउट किए जाते हैं उसके बाद उन सॉल्यूशंस में से स्टूडेंट्स खुद एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है वो म्यूचुअल डिस्कशन विद द टीचर के उसके आखिर में करने के बाद फिर उन जो फाइनली कोई भी प्रिंसिपल या लॉ उसमें से ढूंढा जाता है या फार्मूला कंक्लूड किया गया है उसको जनरलाइज किया जाता है, और फिर उस जनरलाइजेबिलिटी के बाद स्टूडेंट्स उस गिवन फार्मूला को न्यू सिचुएशंस में ख़ुद यूज़ करते हैं और टेस्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं उसको कि उस अपने नॉलेज को वेरीफाई करते हैं कि वाकई जो लॉ है वो वर्कआउट कर रहा है डिफरेंट सिचुएशंस में या नहीं कर रहा। सो ये सारा प्रोसेस जो है वो बड़ा लॉजिकल होता है, और क्योंकि वो इन लॉजिकल स्टेप्स के थ्रू बच्चे नॉलेज गेन कर रहे होते हैं तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव नॉलेज होता है और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इसमें काफ़ी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं जो कि मैथ्स में से हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हेयर इज़ सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज़ इवन, ठीक है, ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट है। इसको सोल्यूशन करवाने के लिए बच्चों को टीचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। 1 + 1 = 2, 1 + 3 = 4, 1 + 5 = 6 एंड 3 + 5 = 8। तो यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं उसमें ऑड नंबर्स जो हैं दो उनको ऐड किया जा रहा है और ये फाइंड आउट किया जा रहा है कि जो भी उसका सोल्यूशन आता है वो इवन होता है, ठीक है। तो इसमें जो जनरल कॉन्सेप्ट जनरेट करता है दैट इज़ इन द अबव वी कंक्लूड दैट सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज़ इवन। तो सो इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप पिछले जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं उनको आप अप्लाई करते हैं तो इनिशियली टीचर की तरफ से कोई कंक्लूजन प्रेजेंट नहीं किया जाता, जस्ट डायरेक्टली जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ एग्जांपल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, और जब बच्चे उसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद बच्चों से कहा जाता है कि इसमें कोई कॉमन पैटर्न जो है उसको फाइंड आउट करने की ट्राई करें। और अगर बच्चे जो हैं वो इस तक पहुंच जाते हैं कि सारे ऑड नंबर्स हैं जो विच आर बीइंग एडेड एंड देयर सम इज़ ऑलवेज इवन,
तो बच्चों के बाद उसके बाद जो है वो टीचर के साथ डिस्कशन की जाती है और फिर फाइनली इसको जनरलाइज कर दिया जाता है। टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन में ये होगा कि एक न्यू सेट ऑफ एग्जांपल्स इसी तरह से जिसमें ये जो डिजिट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये काफ़ी बड़े हों या इसको इनको चेंज किया जा सकता है। लाइक मोर देन 10 जो है जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए उन एग्जांपल्स को ऐड किया जा सकता है, जहाँ पर वो फिर जो गिवन फार्मूला है या जो यहाँ पर गिवन एक कॉन्सेप्ट है दैट सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, उसको अप्लाई करके देख रहे होते हैं और उसको फिर वो टेस्ट एंड वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह से चारों जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करवाया जाएगा क्लासरूम में। Here is another example from mathematics that square of an odd number is odd and square of an even number is always even। तो ये अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, लेकिन टीचिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट कैसे कहाँ से होगी कि जब हम बच्चों को ये गिवन सेट ऑफ एग्जांपल्स जो है ये प्रोवाइड कर रहे होंगे बच्चों को, और उसमें ये होता है कि जैसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि 12 है इज़ इक्वल टू 1, 32 इज़ इक्वल टू 9, 22 इज़ इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट्स की हम बात करें, स्क्वायर्स की बात करें, 42 इज़ इक्वल टू 16, ठीक है, और 52 इज़ इक्वल टू 25। अब ये डिफरेंट जो है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की फॉर्म में दिया जा रहा है। अब इसमें से स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जनरल कॉन्सेप्ट उनका ये होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड एंड स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। Now we will discuss some advantages or merits of inductive approach. Inductive approach increases the self-confidence among students because they are always working on different examples and producing new examples when they have to apply the theory or apply any formula. उसकी जनरलाइजेबिलिटी के लिए जब वो खुद से एग्जाम्पल्स के साथ काम करते हैं, सो ऑल दिस इंक्रीजेज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड बिकॉज क्योंकि ये रीजनिंग के साथ काम कर रहा होता है, तो रीजनिंग की वजह से ये एक इसको हम कह सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल मेथड होता है जो कि आपके ब्रेन के साथ वर्कआउट कर रहा होता है। इट इज़ अ मीनिंगफुल लर्निंग and it is a scientific method if you remember that method which follows particular concept steps, और इसमें चूँकि स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे होते हैं और एक लॉजिकल रीजनिंग उसके साथ फॉलो हो रही होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक मेथड। एंड देन इट डेवलप्स साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। साइंटिफिक एटीट्यूड ये नहीं होता कि जस्ट साइंस में काम करना और किसी और सब्जेक्ट में काम करना नहीं करना, बल्कि साइंटिफिक एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि एक इनर सेल्फ बच्चे की जो है उसमें एक चेंज आता है जिसमें वो हर एक चीज़ को साइंटिफिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसको वेटेज देता है कि हर एक जो भी नया उसका कॉन्सेप्ट है उसको साइंटिफिकली सॉल्व कर रहा होता है। इट डेवलप्स दैट द हैबिट ऑफ इंटेलिजेंट हार्ड वर्क, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है वो रोट मेमोराइजेशन स्टार्ट नहीं हो रही होती, बल्कि इंटेलिजेंटली स्टूडेंट्स वर्कआउट कर रहे होते हैं, एग्जांपल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, सो वी कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज द स्टूडेंट नोज हाउ अ पर्टिकुलर फार्मूला हैज़ बीन फ्रेम्ड, क्योंकि एक जो मैथ्स में उनको उसकी रूट पता चल जाती है कि ये फार्मूला बना कैसे है और इसके पीछे इसकी बेस क्या है, कैसे इसको डिराइव कैसे किया गया है। तो इस वजह से ये मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका यूज़, क्योंकि ये बच्चों को जो मैथ्स के लॉज और फार्मूलाज होते हैं या कहीं पर भी अगर कोई प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन का प्रॉपरली उसको बताया जाता है कि ये एक प्रिंसिपल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया है। और उसके बाद जब उनको फार्मूला की कंस्ट्रक्शन पता चल जाएगी और उसके बाद वो उस फार्मूला को जब भी किसी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसकी रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो ज़्यादा जल्दी क्विकली डिसाइड कर सकेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि उनको फार्मूला की जो कंस्ट्रक्शन है उससे भी वो वेल अवेयर हैं और उसको फिर ज़ाहिर जब कंस्ट्रक्शन से वेल अवेयर होंगे तो उसके यूज़ से भी वेल अवेयर हो जाएंगे। सिंस इट इज़ अ लॉजिकल मेथड सो इट सूट्स टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स हम हमेशा कहते हैं कि दैट इज़ द साइंस ऑफ लॉजिक्स, तो मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिक होती है। इवन अगर एक एग्जांपल को आप सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हर एक स्टेप जो है जिसको फॉलो करना है, लाइक अगर आपके पास
जो DMS का रूल है, ठीक है, उसको जब आप अप्लाई करते हैं कि पहले आपने डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है और फाइनली जो है वो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अब ये रूल जो है इसको डेवलप कैसे किया गया और फिर जब एक डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट क्वेश्चन की फॉर्म में ये रूल हमें अप्लाई करने के लिए दिया जाता है, तो ये सारा उसमें पीछे एक लॉजिक्स वर्कआउट कर रही होती है। तो लॉजिक इज़ एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स। तो उस लॉजिकल ये चूँकि ये मेथड भी एक लॉजिकल मेथड है, इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं कि इसको मैथ्स में यूज़ किया जाता है। Here are a few demerits of inductive approach. It is a natural method of making discoveries. Majority of discoveries have been made inductively. So this is also a merit of inductive approach, that when students are using inductive approach in their learning, so they are making discoveries. मैथ्स में भी वो फिर डिस्कवरीज इंडक्टिवली कर रहे होते हैं, और मैथमेटिक्स में डिस्कवरीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं बाकी जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उनसे। तो मैथ्स की लेबॉर्ट्री में या मैथ्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या आप ये कह रहे हैं कि मैथ्स की जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं उसमें इंडक्टिवली बच्चे काम करके डिफरेंट फार्मूलाज और लॉज को मेक कर रहे होते हैं। इट डज़ नॉट बर्डन द माइंड, फार्मूला बिकम्स ईजी टू रिमेंबर, ठीक है। इंडक्टिवली जब आप फार्मूला की फॉर्मुलेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसको रिमेंबर करना ईज़िली हो जाता है, वो आपके मेमोरीज़ का पार्ट जो है वो ईज़िली बन जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। तो जहाँ पर भी रोट मेमोराइजेशन होती है मैथमेटिक्स में, अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं या टीचर्स भी, इवन जो उनकी टीचिंग स्टाइल होता है उसमें रोट मेमोराइजेशन बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, कि हम जस्ट फार्मूला प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को और हम कहते हैं कि उसको इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करें। और फिर जनरली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं फार्मूलाज के साथ कि किस फार्मूला को किस तरह की सिचुएशन में अप्लाई करना है, या अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है तो इवन दे आर अनएबल टू चूज़ अप्रोप्रिएट फार्मूला अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट इफ़ वी आर डूइंग मैथमेटिक्स इन आवर क्लासरूम्स बाय यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच, तो उसमें बच्चे जो हैं दे आर वेल एफिशिएंट फॉर द यूज़ ऑफ डिफरेंट फार्मूला इन डिफरेंट सिचुएशंस। वो बड़ा क्विकली डिसाइड कर लेते हैं, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज दे नो हाउ दैट फार्मूला इज़ कंस्ट्रक्टेड, हमने उसको बनाया कैसे है। तो इस वजह से वो चूँकि उनको ईजिली रिमेंबर फिर होता है उसके सारे स्टेजेस, उसके सारे स्टेप्स जो फार्मूला कंस्ट्रक्शन के होते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर वो फ़ौरन डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम एग्ज़ाम में या टेस्ट में दी गई है तो उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। दिस मेथड इज़ फाउंड टू बी सूटेबल इन द बिगिनिंग स्टेजेस। All teaching in mathematics is conductive in the beginning. So जो इनिशियल ग्रेड्स हैं, लाइक या आप ये कह सकते हैं कि जो भी कोई भी जो इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लाइक अगर जो है वो आपका अलजबरा आप हायर ग्रेड्स को करवा रहे हैं, लेकिन जो अलजबरा की बेसिक्स जब जो उसकी बेसिक एक्सरसाइजेस करवाई जा रही होती हैं तो उसके लिए इंडक्टिव अप्रोच दैट वर्क्स वेल, बिकॉज इसमें गेन वही जो इंडक्टिवली ड्रॉ कर किए जा रहे होते हैं कंक्लूजन्स। तो इनिशियल स्टेजेस पर ही अगर इंडक्टिवली कंक्लूजन्स ड्रॉ हो जाएं तो उसके बाद जो स्टेजेस जो कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉन्सेप्ट जब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है तो इंडक्टिवली अप्रोच के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। First demerit of inductive approach is certain complex and complicated formula cannot be generated, so this method is limited in range and not suitable for all topics. डेफिनेटली अगर आप काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स अगर आपको मैथमेटिक्स के याद हों, लाइक थ्योरम्स हो गए या एडवांस्ड ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें, और इवन कोई भी जो मैथ्स का उसके जो भी मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें से आप किसी भी ब्रांच की जो कॉम्प्लेक्स मेजर जो कॉम्प्लेक्स उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर आप कंसिडर करते हैं तो उनकी जो हाउ दे आर जनरेटेड, तो इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी फार्मूला का जो जनरेशन प्रोसेस है वो इतना लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स को अगर हम समझाने लगें कि ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ है और उसकी बेसिक क्या है, तो वो एक एडवांस्ड मैथमेटिक्स की क्लास हो जाएगी।
तो जो स्कूल ग्रेड्स हैं मैथमेटिक्स के, उसमें उनको उस एडवांस लेवल पर लेकर जाना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। तो हम सिर्फ उन्हीं फार्मूलाज़ की के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो कि क्वाइट इजी हैं या जो सिंपल हैं। तो उनको समझाने के लिए उनकी जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, कि जनरेशन का प्रोसेस होता है किसी फार्मूला की, वो हम बच्चों को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। तो जो इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए ज़्यादा इसकी जनरलाइजेबिलिटी है, इसका यूज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस मेथड, बिकॉज हम इसमें थोड़ा सा पीछे जा रहे होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है वो एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस देने की बजाय हम उस जो फार्मूला को जनरेट करने के लिए पहले एग्जांपल दी जाती हैं, और जब फार्मूला जनरेट हो जाता है उसके बाद दोबारा एग्जांपल्स दी जाती हैं उसकी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के लिए। सो इस तरह से इट बिकम्स क्वाइट लेबोरियस मेथड, क्योंकि बार बार बच्चों को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, और फिर एक फ़ाइनल वो कंक्लूजन करते हैं, और फिर उस कंक्लूजन को भी दोबारा उन्होंने टेस्ट और वेरीफाई करना होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी काफ़ी क्लासेस जो हैं वो निकल जाती हैं। तो इस वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। जब सिलेबस कवर करने की बात आती है तो उसमें अगेन वही कि ये लेंथी एक प्रोसेस होता है इसका, तो ये टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर रहा होता है, और लेंथी होने की वजह से जो है वो फिर एक मैथ्स की जो क्लास है उसके लिए वो इसके लिए इनसफिशेंट हो जाती है। Some more demerits of inductive approach. Its application is limited to very few topics. Again वही चीज़ है कि टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी उसमें भी इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन आती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लास, क्योंकि हायर क्लास में जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एडवांस्ड मैथ्स होता है, और उसमें फिर अगर आप इंडक्टिवली उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहें तो वो काफ़ी लेंथी होने की वजह से भी, और बल्कि बेसिकली जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी वजह से इसको ये इतना ज़्यादा फिर सूटेबल मैथ्स में नहीं रहता। Inductive reasoning is not absolutely conclusive because the generalization made with the help of a few specific examples may not hold good in all cases. So जो chance of error है वो एग्जिस्ट करता है इंडक्टिव रीजनिंग में, क्योंकि अगर आपने स्पेसिफिकली कुछ सपोज़ किसी एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी या एक फार्मूला की जनरेशन के लिए आपने 10 एग्जांपल्स को चूज़ किया है, 10 इज़ अगेन अ लिमिटेड नंबर। अगर से वो उसमें से हो सकता है कि वो किसी और वजह से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ आप जाते हो बार बार, और चूँकि वो एक्चुअली क्या हो रहा हो कि आप फाल्सली अज्यूम कर रहे हो उन सॉल्यूशंस को। तो यानी इसमें ये है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें जो आप बार बार एग्जांपल्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो हो सकता है कि ऑन द फेस तो आपको लग रहा हो कि ये ठीक सॉल्व हो रहा है, लेकिन अंडरलाइन कॉन्सेप्ट हो सकता है स्टूडेंट्स उसको फाइंड आउट ना कर पाएँ कि उसमें कोई मिस्टेक भी है। लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव मेथड, कहाँ कैसे किस तरह से ये अप्लाई किया जा सकता है। इंडक्टिव अप्रोच इज़ मोर सूटेबल वेयर रूल्स आर टू बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, अगर आपने कोई भी न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट करना है मैथ्स की क्लास के लिए, कोई नया जो रूल है उसको अप्लाई करना सिखाना है बच्चों के लिए, बच्चों को, तो उसके लिए ये सूटेबल है। डेफिनेशंस आर बी फॉर्मुलेटेड। डेफिनेशंस काफ़ी क्योंकि डेफिनेशंस बेस करती हैं लॉजिक के ऊपर, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस जो उनके उसके अंदर जो अंडरलाइंग अजम्पशंस डेफिनेशंस के अंदर होती हैं उनको फाइंड आउट करना, उनको लॉजिकली जो फॉर्मुलेट करना, वो दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू इंडक्टिव मेथड। फार्मूला आर टू बी डिराइव्ड, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट फार्मूलाज, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। सो फार्मूला जो है उनकी डेरिवेशन के लिए भी ये मेथड सक्सेसफुल है। जनरलाइजेशंस और लॉ आर टू बी अराइव्ड एट, यानी डिफरेंट लॉज तक जब आपने पहुंचना हो, एंड प्रोडक्ट आपने कोई लॉ जनरेट करना हो, तो उसके लिए भी जो है वो इंडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडक्टिव अप्रोच। ऑल्दो दिस इज़ not a new approach for you people, you have already discussed in different subjects during your master's program about the inductive method. इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, और बेसिकली जो है वो इंडक्टिव मेथड इज़ प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। क्विकली हम इस लेक्चर का एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं
क्योंकि इसमें जो बेसिकली मैंने आपको ये बताया है कि इंडक्टिव जो अप्रोच है उसमें इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई हो रही होती है। इसमें यह है कि डिफरेंट एग्जांपल्स बच्चों के सामने होती हैं और जब बार बार एक एग्जांपल के थ्रू वो एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और वो जो कंक्लूजन होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ले जाता है, उसको फार्मूला या लॉ की फॉर्म में आ जाता है और फिर हम उस फार्मूला या लॉ जो होता है उसको हम दोबारा से कंक्लूड कर रहे होते हैं और उसको दोबारा अप्लाई किया जाता है न्यू सिचुएशंस के अंदर और वेरीफाई और टेस्ट कर लिया जाता है। सो इस तरह से जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू स्टूडेंट्स लर्न कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स को। एक और क्रक्स जो हमने इस सारी प्रेजेंटेशन में आज डिस्कस किया है दैट इज़ कि जो मैथ्स है उसके सिंपल कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए इंडक्टिव मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है इंस्टेड ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो कॉम्प्लेक्स की तरफ जितना आप जाएंगे उसमें इस मेथड की जो एप्लीकेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। फिर हमने इसके मेजर स्टेप्स को डिस्कस किया है जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स हैं, फिर ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बाय द स्टूडेंट्स होती है और उसके बाद जनरलाइजेशन है, जो भी कंक्लूजन हमने निकाला है उसको हम जनरलाइज कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो फाइनली टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस आता है। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया है और उसके बाद जो है वो फाइनली हमने उसके मेरिट्स और कुछ जो डीमेरिट्स हैं उनको भी डिस्कस किया है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द इंडक्टिव अप्रोच। थैंक यू वेरी मच।